So today we'll discuss Bohr's model of the atom. So we'll discuss this in two parts. So first we'll discuss today the part 1. So far we discussed Rutherford's model of the atom, but this model has many drawbacks. For example, Rutherford's model could not explain the stability of the atom. Stability of the atom. It could not explain the line spectrum of hydrogen atom, and it was unable to explain the distribution of electrons and their energies in an atom. So to overcome the drawbacks of Rutherford's model, a new model of the atom was proposed by Niels Bohr in 1913, based on Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. This model is known as Bohr's model of the atom. So the main pointers of this model are: the first point, atom contains a small, heavy, positively charged nucleus at the center, and electrons are revolving around it in circular paths or orbits. यानी एटम के सेंटर में होता है एक हैवी, स्मॉल, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स. The second point, very important. Out of many orbits theoretically possible, the electrons can revolve only in those orbits where the energy has fixed or definite values. Fixed or definite values. These orbits are called stationary states. Stationary states or energy levels. Stationary state does not mean that the electron in such an orbit is stationary, but it means that the energy of the electron, as long as it revolves in that particular orbit, remains constant. यानी जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब तक उसकी एनर्जी रहती है कांस्टेंट. वो एनर्जी चेंज नहीं होती है विद टाइम. So these energy levels, these different energy levels or status are numbered as 1, 2, 3, 4, so on, are designated by the letters K, L, M, N, so on. Starting from the energy level close to the nucleus. ये यहाँ से हम शुरू करते हैं. इस energy level को देते हैं 1, 2. The energy level is given 1, which is close to the nucleus, or it is designated by the K letter. So we number these energy levels by these 1, 2 by numbers 1, 2, 3, 4, or designated by the letters K, L, M, N, O. In case of hydrogen atom, the energies of different status is given by the expression known as Bohr's formula. यानी हम इन एनर्जी लेवल्स का हम एनर्जी निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला En is equal to -2 pi square me4 divided by n square I square. This is called Bohr's formula. ये Bohr's formula है. Bohr's formula. So in case of hydrogen atom, you can calculate the energy of different energy levels. So if we substitute the value here is m is the mass, पाई तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है. m जो है अगर हम इसका वैल्यू करेंगे सबस्टिट्यूट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs or 9.11 into 10 raised to minus 28 grams
इसी तरह E का हम करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी तरह हम करेंगे H का प्लैंक्स कांस्टेंट है, दिस इज चार्ज इलेक्ट्रॉन, दिस प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। इन वैल्यूज को हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहां पर, सो विल गेट En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt per atom, or we can get En is equal to minus 13.6 divided by n square। इसको हम कहेंगे कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, it is the energy acquired by the electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। so इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं into joules में, so we'll get we will get minus 13 points, इसको हम ऐसे करेंगे, अगर हम इसको joules में कन्वर्ट करेंगे we will get minus 1312 divided by n square kilojoules per mole। ये kilojoules per mole आएगा अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे into this kilojoules per mole में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को करेंगे पर मोल में कन्वर्ट, we will get kilojoules per mole minus 1312 divided by n square। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दिस इज कंजर्वेशन फैक्टर 1.602 into 10⁻⁹ जूल्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है। इसी को यहां पर सबस्टिट्यूट करके we will get this term En is equal to this। अब अगर हम लेंगे लेवल नंबर 1 हम निकालते हैं E1, यानी n को हम देंगे वैल्यू 1, यानी if n is equal to 1, so लेवल 1 का निकलता है minus 1312 divided by 1 square, so we'll get 1312 kilojoules per mole। exactly अब हम लेंगे n is equal to 2, so we'll get minus 1312 divided by 2 square, that is 4, यानी 1312 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, we'll get minus 328 kilojoules per mole। exactly लेवल नंबर 3 का हम निकालेंगे, minus 1312 divided by 9 we'll get 145.8 kilojoules per mole। exactly हम फोर्थ का निकालेंगे, वहां करेंगे minus 1312 को करेंगे 16 से डिवाइड, we'll get minus 63.8 kilojoules per mole। so these are the energies of different levels in case of hydrogen atoms। so यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर 1 का मतलब है दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकंड का मतलब है दिस सेकंड लेवल, n is equal to 3 का मतलब है थर्ड लेवल, n is equal to 4 मींस फोर्थ लेवल, ये फोर्थ लेवल है। द फर्स्ट एनर्जी लेवल n is equal to 1 which is closest to the nucleus, ये न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं जो फर्स्ट लेवल है। सो इसका एनर्जी होगा लोवेस्ट एनर्जी होता है, इसका लोवेस्ट एनर्जी। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो एनर्जी होता है इंक्रीज, एनर्जी यानी फर्स्ट लेवल की एनर्जी सबसे कम होगी, सो जितना हम एनर्जी दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, सो एनर्जी बढ़ती है। द एनर्जी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इज नाउ, ऑर्डर अगर हम दिए सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इज फर्स्ट का होगा, फर्स्ट लेवल का, दैट इज लेस देन सेकंड, दैट इज लेस देन थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह ये मतलब n is equal to 1 दिस। अब यहाँ पर एनर्जी गैप आप देखिए, एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। अगर हम लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 एनर्जी गैप देखेंगे, दैट इज minus 984 kilojoules per mole। एग्जैक्टली अगर हम देंगे लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3 में एनर्जी डिफरेंस, दैट इज minus 182.2। इसी तरह लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4 में देखिए एनर्जी डिफरेंस, दैट इज minus 63.2। अब यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी गैप जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन लेवल्स दैट डिक्रीजेस, वो एनर्जी गैप यहाँ पर डिक्रीज होता है एज वी मूव आउटवर्ड्स, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। और इससे यहाँ पर एक और चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम इज दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, एनर्जी गैप सेम नहीं है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, दैट वैरीज। अगर आप हम यहाँ पर चेक करेंगे दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हो जाता है एनर्जी गैप between the levels when we move outwards from the nucleus। so अब ये एनर्जी अगर हम निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए
एनर्जी हम कैसे निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस चार्ज, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह लिथियम 2 प्लस में, इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इनकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 डिवाइड बाई n स्क्वायर s स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया z, यहाँ पर z जो हो गया दैट इज एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है ऑफ द एटम, जिसका हमें निकालना उसका ये एटॉमिक नंबर है। सो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स सच एज हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Em इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। सो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, तो अभी हमने बोला आपको z यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, दिस एटॉमिक नंबर किलो जूल्स पर मोल, ये हम हाइड्रोजन लाइक एटम निकालेंगे। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये फार्मूलाज लाइक दिस। सो हम एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेटस दैट इज En, ये प्रोपोर्शनल है -1 बाई n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं En is equal to, यानी एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन En is equal to, दिस इज RH minus RH into 1 by n स्क्वायर। यहाँ पर जो ये RH है, दिस इज नोन एज राइडबर्ग कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइडबर्ग कांस्टेंट है ये। इसका जो वैल्यू है RH का वैल्यू जो है, दिस इज RH इज इक्वल टू -13.6, ये -13.6 है किलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका वैल्यू, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, दैट इज 21.8 into 10⁻⁹ जूल्स, ये RH का ये राइडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ En। n तो पता है ये लेवल नंबर है, दिस लेवल नंबर। सो इसी तरह हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये En, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए En प्रोपोर्शनल -1 बाई n स्क्वायर, यानी z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ये। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे En इज इक्वल टू RH into z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, यानी -RH z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, where z इज यहाँ पर जो है ना, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट या ऑफ द एटम। सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, दिस वाज फॉर हाइड्रोजन, ये था हाइड्रोजन के लिए। सो नाउ रेडियस ऑफ दीज स्टेटस, जो इन स्टेटस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दीज ऑर्बिट्स। सो रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेटस, रेडियस दैट इज n तो लेवल नंबर है, यानी दैट इज गिवन बाय द रिलेशन A0 n स्क्वायर, वायर A0 जो यहां पर है, वायर A0, this is the radius, where A0 is the radius of first energy level, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की रेडियस है। सो इट इज वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, या और 0. ये होता है 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। सो ये दिस इज कॉल्ड बोहर रेडियस, ये बोहरस रेडियस है, इसको बोलते हैं बोहरस रेडियस। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट।
अब अगर हम लेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, उनके लिए हम कैसे करेंगे रेडियस कैलकुलेट, रेडियस हम कैसे करेंगे कैलकुलेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, that is given by Rn is equal to A0 n square divided by Z। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर Z हम निकालते हैं, Z इज एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। यानी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स है उनका हम रेडियस निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला A0 n square divided by Z। व्हाट इज A0? A0 इज द एनर्जी लेवल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल, that is equal to 0.529 angstrom or 52.9 pm। this is called Bohr's radius, first का उसको हम बोलते हैं Bohr's radius। so this is radius। अब velocity of the electron in a particular this state or energy level, that is given by velocity, that is given by Vn। in a velocity of electron in these stationary status, that is given by V0 divided by n। ये what is V0? this is the velocity of electron in the first energy level। इसका वैल्यू होता है 2.188 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे उनका हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। इसका हम निकालेंगे फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कैसे निकालेंगे? Vn इज इक्वल टू V0 इनटू Z डिवाइड बाय n। यहाँ पर हम Z जो है दिस इज एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। So, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब यहां पर हमने देखा व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर, इलेक्ट्रॉन यहां पर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल्स में या उन्हीं ऑर्बिटल्स में वो रिवॉल्व कर सकता है जहां पर उसका वैल्यू, जहां पर जो ऑर्बिट का जो एनर्जी वैल्यू दैट इज फिक्स्ड। सो सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, hence electron in an atom have only certain definite or discrete values of energy and not any value of its own। any electron can always take definite or discrete values of energy, it will not take any value of its own। so we can say that, we can conclude that energy of electron is quantized। what quantization means? Quantization means when a property is restricted to discrete values, यानी इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट वैल्यूज हो सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इट इज क्वांटाइज्ड। व्हाट क्वांटाइजेशन मीन्स? क्वांटाइजेशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज। यानी हम जब किसी प्रॉपर्टी को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू टेक डिस्क्रीट वैल्यूज, टू टेक फिक्स्ड वैल्यूज, टू टेक डेफिनेट वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है दैट इज क्वांटाइज्ड। Inshallah, hope you have got it, and inshallah we will continue this in the second part. Thanks.